مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھا, کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. یہ تھکا بیوی کی روز روز کھٹ کھٹ سے تھکا, اللہ میرے کو. او بیوی بھی دھارا لے گی. آپ کے کہاں کے بول رہے ہیں, مطلب بمبئی اتنا سب ایک ہی. بیوی نے دیکھا دعا پڑھتا ہے, اللہ میرے کو اٹھا لے. ارے پھٹافٹ اس نے بھی وضو کیا, اس نے بھی مسواک کیا, ارے پھٹافٹ 2 رکعت نماز, اور اس نے بھی رونا شروع کیا, اللہ میرے کو اٹھا لے. اور عورتوں کو تو رونا ویسے بھی جلدی آتا, مرد بیچارہ تھک جاتا تو آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا, اور عورت کو تو ایسا لگتا آنسو کی ٹنکی سر پہ فٹ, پھٹافٹ رونا, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے. اتنا زور زور سے روئے, اللہ میرے کو اٹھا لے. اس نے سنا, کون شوہر نے سنا, اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون, اللہ میری نہیں اس کی سن لے. سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اسی لیے مولی سراج نے بھیج دیا بھائی. آپ لوگ ہنسے نا, آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ قاری صاحب نے بیچ میں کیوں ہنسایا. میں ہنسایا نہیں, توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں. مولوی لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, ہے نا مولانا؟ او مولانا, مولوی لوگ بہت, میں کہتا کبھی مولوی کو چھیڑنے کا نہیں, چھوڑے گا نہیں. مولوی اتنا ہوشیار ہوتا, اتنا ہوشیار ہوتا. ایک مرتبہ معلوم ہے مولانا کھانے کو چلا گیا, کھانے کو مولانا. اب میرے جیسا ہوئے جس کو روز آنا کھانا باہر ہی ملتا ہوئے, بھائی جہاں بھی بیان کرنے جاؤ تو کھانا ملے. ہاں اب مولانا کھانا کھانے کو گیا, اب کیا ہوا, جلدی میں چلا گیا مولانا. ایسا تھال رکھا تھا, تھال, اب ادھر چاول, بولو ادھر چاول, ادھر تندوری لیگ پیس. اب مولانا جلدی جلدی آیا, اور جہاں چاول تھا وہاں بیٹھ گیا. بیٹھا تھال میں, لیکن ادھر چاول ہے اور ادھر تندوری. مولانا جلدی جلدی میں آ کے بیٹھ گیا, ادھر کوئی دھاراوی کا جوان آ کے بیٹھ گیا. اب مولانا نے یہ تندوری کھا میرے, مولانا چاول کھا لے. بہت ہوشیار مولانا. مولانا نے کیا کہا, اپنا دھاراوی میں آج کل ویدر کیسا ہے, ٹھنڈی ونڈی ہوتی کہ نہیں ہوتی, کہ گرمی ہے, اور اپنے گاؤں میں کیسا چلتا ہے. وہ بیچارہ جوان بات کرنے لگا, مولانا نے تھال گھما دیا. تھال گھما دیا, تھال گھمانے کے بعد غصے ہوا, کم بخت نالائق, کھانے کے وقت پہ بات کرتا, اور بسم اللہ والا برکت اللہ. اب اس نے بھی بسم اللہ, لیکن جیسا بسم اللہ کہا, مولانا کیا ہوا, تندوری لیگ پیس تو میری طرف تھا. مولانا نے کہا نالائق کم بخت, معلوم نہیں یہ تندوری لیگ پیس یہ پاؤ قبلے کی طرف تھا, مکروہ کھاتا, حرام کا کھاتا, شکر مان ہم نے عزت بچا لی. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ سب اپنے بھی ہنس رہے, ان کو نہیں معلوم ہے ان پہ آنے والا ہوں. پہلے اپنے اوپر ہنسا لیتا ہوں تاکہ سامنے بولوں تو کسی کو خراب نہیں لگے, ورنہ بولتے ہیں مولانا میری انسلٹ کیا. اس سے پہلے اپنی انسلٹ کروا لو نا. لیکن صحیح میں کبھی کوئی مولانا کا بھی سوا سیر ہوتا ہے, مولانا سیر ہوتا ہے نا, تو کوئی ایک مرتبہ مولانا گئے, اس کو مرغی کھانے کی اجازت. کس کی؟ میرے کو بھی کتنے لوگ بولتے ہیں, مفتی ریحان آپ تو برابر ہو, مولی سراج آپ بھی برابر ہو. یہ میرے کو تو کتنے لوگ بولتے ہیں مولانا تو ڈائٹنگ کائے کو نہیں کرتا. کتنے لوگ میرے کو بولتے ہیں, میں نے کہا کائے کی ڈائٹنگ, روزانہ مرغی توڑے, وہ کائے کی ڈائٹنگ, یہ مرغی کا قبرستان بنا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ کوئی مولانا کے بھی سر کا نکلتا, مولانا گیا, وہ یہ سوچ کر گیا کھانے میں کیا ہوگا, بولو بولو نا, بولو نا بھائی, کھانے میں کیا ہوگا, مرغی. اب وہ جیسا کھانے کے لیے بیٹھا, سب سے پہلے بھرجی آئی. بھرجی کس کی ہوتی ہے؟ پھر تھوڑی دیر میں دیکھو تو آملیٹ آیا, وہ بھی کس کا, انڈے کا. پھر دیکھو تو ہاف فرائی آیا, وہ بھی کس کا, انڈے کا. پھر ابلے ہوئے ایگز, ابلے ہوئے انڈے آ گئے. اب مولانا نے سوچا یہ تو ختم ہو گیا, تو مولانا نے ابلا ہوا انڈا اٹھایا اور کہا بھائی گھر کا مالک کون ہے, آج کون تھا, ہاں شرف الدین بھائی. کہا گھر کا مالک کون ہے, تو شرف الدین نے کہا میں گھر کا مالک ہوں. تو مولانا نے کہا یہ انڈا اس کی ماں کا ہے, ماں. تو شرف الدین بھی بڑا ہوشیار تھا, روتے روتے بولا مولانا معاف کرنا, یتیم پیدا ہوا. بہت اچھا لگتا, آپ لوگ ہنس رہے ہو, بہت اچھا لگتا. میں میری پوائنٹ پہ آ جاؤں نا, محبت کس کو کہتے ہیں. اچھا ایک مرتبہ بھی کس کے, اب تو آپ میرے ہنستے ہنستے میرے ہو گئے, ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. میں نے پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستوں محبت کسے کہتے ہیں, ہم لوگ نبی سے محبت کرتے تھے, کرتے اور کرتے. ارے قسم کھا کر بولو مومن سب برداشت کرے گا, مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت. بولو نا نبی کی شان میں گستاخی برداشت. اور جو کرے گا ہم بد دعا کرتے ہیں, اللہ اسے برباد کرتے ہوئے بولو آمین, اللہ اسے تباہ کرتے ہوئے بولو آمین.
उसको दुनिया आखिरत में फांसी के तख्ते पर लटका देवे। हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते हैं। मोहब्बत किसको कहते हैं? एक वाक्या सुन लो फिर हम नतीजे पर आ जाएंगे। सब करते ना मोहब्बत, तो करते ना? अरे हाँ बोलो ना तो मेरे को अच्छा भरोसा हो जाए, बोलो ना करते ना? अरे बोलो ना मुस्तफा का दामन। उहद मैदान आपको मालूम है ना? उहद मैदान कौन सा मैदान? बदर के बाद जो गजवा हुआ वो गजवे का नाम गजवा उहद। भाई उहद पहाड़ तो बहुत सोने देखा होगा, उम्रे में गए होंगे, हज में गए होंगे, बोलो ना उहद पहाड़ देखा कि नहीं देखा? हमारे नबी ने तश्कील फरमाई, आ जाओ मेरे सहाबा उहद मैदान में आ जाओ। तवज्जो देना, तवज्जो है ना आपकी? हमारे नबी ने तश्कील फरमाई, आ जाओ उहद मैदान में आ जाओ। अरे कुर्बान जाओ, हमारे नबी ने ऐसी तश्कील की, जबान इतनी मुबारक थी, हमारे नबी ने ऐसी तश्कील की, अल्लाह ने उसी तश्कील को कुरान की आयत बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने उहद मैदान के मौके पर ऐलान फरमाया आ जाओ, लेकिन तश्कील कैसे अंदाज में की? क्या फरमाया? वसारिऊ इला मगफिरह मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह के रास्ते में आ जाओ। जो आएगा, जो आएगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा, अल्लाह उसकी मगफिरत करेगा। ये तश्कील कौन कर रहे हैं? हमारे अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह ने 2 जगह कुरान में तश्कील बताई। ये 4था पारा पढ़ा मैंने। कौन सा पारा पढ़ा? 27वें पारे में फिर अल्लाह ने यही तश्कील का जिक्र किया। अल्फाज अलग है, बात वही है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा महबूब ने कितने अच्छे अंदाज में फरमाया, साबिकू इला मगफिरह मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया आ जाओ, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह ऐसी जन्नत अता करेगा जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीनों के बराबर। मेरे दोस्तों, कौन से मैदान की बात कर रहा हूं मैं? उहद। देखो उहद मैदान हो गया, बोलो मैं पूरे वाक्य पर नहीं जाता। उहद मैदान 70 सहाबा शहीद हुए। कितने सहाबा? 70 सहाबा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी को कितना गम होगा, कितना दर्द होगा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इसलिए कि हमारे नबी उहद पहाड़ के करीब, हमारे नबी उहद पहाड़, भाई बच्चों को कहो खामोश रहे, हमारे नबी उहद पहाड़ के पास है। सुनना, हमारे नबी को जब पता चला 70 सहाबा शहीद हुए हैं, सबकी लाश मुबारक रखी हुई है, हमारे नबी देखो यूं उठे, यूं उठकर धीरे धीरे कदमों से आगे गए। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, उलमा किराम लिखते हैं, एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उससे कई गुना ज्यादा नबी अपने उम्मती से मोहब्बत करते हैं। सहाबा किराम की लाशें मुबारक रखी हुई। सुनना, हमारे नबी आए, अरे बोलो ना हमारे नबी आए। पहले सहाबी, सुनो, पहले सहाबी, सारे सहाबा किराम के जनाजे मुबारक रखे हुए हैं। हमारे नबी आए, वो पहले सहाबी को देखा, हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। फिर नंबर 2 पर आए, फिर नंबर 3 पर आए, फिर नंबर 4 पर जब आए तो सहाबी के चेहरे पर कपड़ा रखा हुआ, यानी चेहरा नहीं नजर आ रहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते रोते पूछा, मन हादा, ये कौन है, कौन है? सारे सहाबा के चेहरे खुले हैं जो शहीद हो गए, इनका चेहरा बंद क्यों है? हजरत बिलाल करीब में खड़े थे, कहा अल्लाह के रसूल मन देखो, आगे चलो। कहा लेकिन मन आधा है कौन? हजरत बिलाल ने कहा आप मत पूछो कौन है, वरना आप बहुत रोएंगे, ये आपका बहुत चहीता है, आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, दुआ करते करते आप आगे बढ़े, आप ये ना पूछे ये कौन है। हमारे आका साहब ने फरमाया बिलाल मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे बताया नहीं जाएगा कौन है। तो कहा ये हजरत अम्मार है। बोलो कौन? अम्मार, पूरा नाम अम्मार इब्ने जियाद, 25 साल के सहाबी। बोलो कौन? हजरत अम्मार। तो हमारे नबी ने कहा मेरा अम्मार, मेरा अम्मार। ये कहकर हमारे नबी बैठ गए। हजरत बिलाल ने कहा चेहरा मत देखना, पेशानी से लेकर यहाँ तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए हैं। चेहरा नजर नहीं आता, सिर्फ आंखें नजर आती, बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। मेरे नबी चादर मत हटाना। लेकिन हमारे नबी बैठे और कफन के कपड़े को, बोलो कफन के कपड़े को, सिर्फ आंखें नजर आती। हमारे नबी रोने लगे, हादा अम्मार, मेरा अम्मार। बोलो बोलो ये मेरा अम्मार। क्या रोए होंगे हमारे नबी, मेरा अम्मार, क्या मोहब्बत से रोए होंगे मेरा अम्मार। सारे सहाबा भी जमा हो गए, भाई सारे सहाबा जमा हो गए। मेरे प्यारो, आज हदीस की किताबों में लिखा सारे सहाबा जमा है,
अचानक सबने देखा अम्मार ने अपनी आंखों को खोल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। शहीद हो गए, पूरे बदन का लहू खत्म हो गया, चेहरा नजर नहीं आता, आंखों को जैसे आंखों को खोला, सारे साहबा ने कहना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह इन्ना अम्मारन कद फतहा आइनैहि, अल्लाह के रसूल हमने देखा आपने अम्मार ने आंखों को खोला, इनकी आंखें बंद थी, अभी अम्मार ने आंखों को खोला, हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे नबी ने रोते रोते सहाबा को देखा, कहा जो तुमने देखा मैंने भी देखा, मैंने भी देखा कि अम्मार ने अपनी आंखों को खोला, कुर्बान जाओ। हमारे नबी करीब गए, कहा अम्मार अम्मार तूने आंखों को खोला, इसका मतलब तेरा कोई अरमान रह गया, दुनिया में तेरी कोई तमन्ना रह गई। हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया अम्मार मांग ले, तेरा जो भी अरमान रह गया मांग ले, आज उम्मती मांगता जाएगा, नबी पूरा करता जाएगा, मांग ले। अम्मा ने आंखों को तो खोला ही था, हाँ चेहरे अनवर पूरा छलनी था, धीरे से अपनी गर्दन को हटाया, सारे साहबा ने देखा अल्लाह के रसूल इन्होंने अपनी गर्दन को भी हटाया। हमारे नबी बैठे थे, अरे अम्मार ने यूं गर्दन को उठाया और नबी की गोद में रख दिया। बोलो नबी की गोद में रख दिया, और आंखें फिर बंद की, और एक आवाज आई, फुस्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया, काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं तो कामयाब हो गया। सारे सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल इन्होंने अपनी तमन्ना तो बताई नहीं, भाई इन्होंने आंखें खोली, अपनी तमन्ना तो बताई नहीं, अपना अरमान तो कुछ बताया नहीं। कुर्बान जाओ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, अरे अम्मार अपनी तमन्ना बता के चला गया, अम्मार ने अपनी मर्जी बता दी। सबने कहा क्या? कहा अम्मार ये बता के चला गया, मेरी तमन्ना थी, जिया था मोहम्मद के कदमों पर, मरा भी मोहम्मद के कदमों पर, जिया था नबी के कदमों पर, मरा भी। ये मोहब्बत है, जिएंगे तो मुस्तफा के दामन में, मरेंगे तो मुस्तफा के। अब एक मर्तबा बोलो कौन कौन नबी से, ये मैंने मोहब्बत की डेफिनेशन बता दी। और एक बात, जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा वो नबी से मोहब्बत करता होगा, जो अल्लाह का होगा वो मोहम्मद का होगा, जो मोहम्मद का होगा वो अल्लाह ने फरमाया। पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता मेरा नबी ऐलान कर दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, नबी के तरीके पर चले, बोलो ना मुस्तफा का दामन। अच्छा एक बार फिर मेरे को बोलो, मोहब्बत करते हो ना? हाँ एकदम प्यार से बोलो ना, धारावी वालों करते हो ना? नहीं आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ना, मेरे को वैसे भी कान में बहुत तकलीफ है इसलिए बहुत जोर जोर से बोलता हूँ। बोलो ना मोहब्बत करते हो ना? बोलो ना करते थे, करते अरे सही बोलो, करते हो ना? नहीं समझे? काय को मेरे पास बुलवाते हो भाई नबी से मोहब्बत करते हो ना? दाढ़ी ये देखो, क्या चिकना गाल, लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग हैंडसम। बोली सिराज, एक अजीब बात है, अभी तक ये लोग इतने जोर जोर से बोलते थे मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ये दाढ़ी। भाई बच्चे लोग बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे भाई मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बच्चों से नहीं। मोली सिराज, ये मेरा चश्मा अगर सही काम करता हुआ ना, जवान तो जवान, यहाँ धारावी का तो बुड्ढा ऑल्सो लुकिंग हैंडसम। अरे भाई ईमान से बोलो ना, दाढ़ी कहाँ है? अच्छा चलो ये बात छोड़ो, आपको अच्छा नहीं लगता, मेरे सवाल का जवाब दो, नबी के चेहरे पे दाढ़ी? जोर से नबी के चेहरे पे दाढ़ी? मैंने अभी भी आवाज नहीं आ रही, नबी के चेहरे पे दाढ़ी? फिर अबू बकर, फिर थी बोलते जाओ, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ओ मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी? अरे पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे दाढ़ी? अरे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पे दाढ़ी? अरे बोलो ना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत जुनैद बगदादी, ख्वाजा रोशन चिराग, ख्वाजा लुत्फुल्लाह, ख्वाजा सिराजुद्दीन। वली नहीं बन सकता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा न बनाए। और आपके चेहरे पे दाढ़ी?
भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम? भाई ऐसा तो नहीं है धारावी के पानी में कोई प्रॉब्लम है कि यूं पानी रखता और थाड़ करके बाल गिर जाते हैं? ये बहुत नहीं माना, बहुत सौ के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मैं बार बार चश्मा पहनता उतारता, मुझे पसीना होता फिर भी चश्मा पहनता, सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि ये बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये चिल्ला कर बोलते हैं गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये चिल्ला कर बोलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों अल्लाह के वलियों को बदनाम कर रहे हो? कोई बड़े बाजार में अपने बाप को गाली नहीं देता, कोई बड़े बाजार में माँ को गाली नहीं देता। ये अल्लाह का वली मिला तुमको बदनाम करने के वास्ते, शर्म नहीं आई? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, ये गौस पाक का दामन है। हमारी पैजामा टखनों के नीचे जाए, ये ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है। अरे मेरे दोस्तों, फजर की नमाज के जनाजे उठाए, ये मुस्तफा का दामन है। झूठ बोले, गीबत करे, चुगली करे, दारू पिए, जुआ खेले और फिर भरे बाजार में बोले गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये क्या, ये गौस पाक का दामन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल सीरियस होकर बताओ मेरे दोस्तों, आखिर ये मजाक क्यों? आखिर ये शरीयत को खिलौना क्यों बनाया? गौस पाक ने 15 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। हम कमी ने 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हम कमी ने 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ी। एक साल में 365 दिन होते हैं। गौस पाक ने 15 साल तक हर रात एक कुरान पाक खत्म किया है और हमने 6 साल में एक कुरान पाक, कितने कितने दिन गुजर जाते, हम तो हाथ भी नहीं लगाते, हाथ भी कुरान पाक को हाथ भी छूते भी नहीं है। भाई मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इसलिए मेरे प्यारों, आ जाओ आ जाओ, एक हकीकत पर आ जाओ कि मुस्तफा का दामन, बोलो साथ में, बोलो यकीन के साथ नहीं छोड़ेंगे। बोलो गौस पाक का दामन यकीन के साथ नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का दामन यकीन के साथ, और अल्लाह की कसम, ख्वाजा गरीब नवाज हो या ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, किसी के भी दामन को थाम लो, मैं कसम खाकर कहता हूं हर एक के दामन के नीचे तुम्हें जन्नत नजर आएगी। हर एक के दामन के नीचे जन्नत नजर आएगी। लेकिन सच बोलो, झूठ बोलना बंद करो, गुनाह बंद करो। आज मेरे दोस्तों गुनाह है। मेरे जवानों, मेरे को बहुत खुशी हुई कि जवानों ने ये प्रोग्राम रखा। अल्लाह सारे जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं एक बात खुल के बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारों, ये मोबाइल जो हमारे पास है, इसमें कितनी नेकी होती है? मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग? अरे बोलो गुनाह होता कि नहीं होता? अरे मोबाइल पे जाता, व्हाट्सएप पे जाता है, फेसबुक पे जाता, गूगल पे जाता है। अरे माफ करना, जो गुनाह रंडी बाजारों में नहीं होता वो हमारे मोबाइल पर होता है। जो जुआ और सट्टा बड़े बड़े क्लब में नहीं खेला जाता वो हमारे मोबाइल पर खेला जाता है। लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हजारों औरतों को नचाया जाता है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये कौन सा ईमान है? कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा एहसान है? अरे हम सब ने कलमा पढ़ा है। अरे बोलना हमारा कलमा है, बोलो हमारा कलमा एक, हमारी नमाज एक, हमारा ईमान एक, हमारा काबा एक, हमारा किबला एक। अल्लाह हमको एक बनाए और साथ में एक बात का पक्का इरादा करे, मुस्तफा का दामन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन। मेरे दोस्तों, ये अजमेर में आराम करने वाले बाबा, बोलो कौन? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन। हे मेरे प्यारों, कितना बड़ा अल्लाह का वली, कैसा जबरदस्त अल्लाह का वली। आपको मालूम है 80 साल की जब इनकी उम्र हुई, साथ में बोलोगे कितनी? बुढ़ापा आया। अरे बुढ़ापा आया, लोगों ने आकर इनको कहा आप 80 साल के हो गए। और आदमी बुढ़ापे में बहुत सारी बातें भूल जाता है, और होता है आदमी बुढ़ापे में भूल जाता है। तो किसी ने आकर कहा, हजरत मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से किसी ने आकर कहा, हजरत आप कुरान भूल जाएंगे, आप कुरान। वो पूरी रात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोए नहीं। मेरा कुरान, मेरा कुरान, मेरा कुरान। उसके बाद में 90 साल की उम्र पाई। 80 साल की उम्र में ये वाकया सुना, 90 साल की उम्र पाई। कितने साल हो गए? 10 साल। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में कुरान ना भूल जाओ, इसलिए 10 साल सुबह एक कुरान खत्म किया है, रात को एक कुरान पाक खत्म किया है। मेरे दोस्तों, यही तो वजह थी जब आपको गुस्ल दिया गया। भाई आपकी वफात के बाद, विसाल के बाद जब आपको गुस्ल दिया गया, नहलाने वालों ने नहलाया, जैसे नहलाकर फारिग हुए, अचानक आपकी पेशानी पर कुछ लिखा हुआ। अचानक सुनहरे हुरूफ से आपकी पेशानी पर लिखा हुआ। अरे नहलाने वाले एक दूसरे को पूछ रहे, किसने लिखा? अरे तूने लिखा, अरे तुमने लिखा, अरे आपने
जिस अल्लाह ने वली बनाया उसी अल्लाह ने ये लिखा है। क्या लिखा था आपकी पेशानी पर, क्या लिखा था? और इसी हाल में आपको दफन किया गया अजमेर शरीफ में। क्या लिखा था आपकी पेशानी पर, क्या लिखा था? वो सुनहरे हुरूफ से क्या लिखा था? अरे मेरे प्यारों, लिखा था माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। बोलो माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। लिखा था अल्लाह का वली जा रहा है, अल्लाह का वली जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत को समेट के जा रहा है। मेरे प्यारों, आज मैं बात खत्म करूंगा, वक्त हो गया, 10 बजने आए। मैं आज सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैंने बहुत नारे लगवाए कि नहीं लगवाए? मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं इनके दामन की हकीकत आपको बता दूं, बात खत्म। आइंदा हमारी मुलाकात होवे ना होवे, लेकिन ये बात अगर मैं और आप समझ लेंगे ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कौन कौन तैयार है? एक बात समझने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो एक बात, आखिरी बात, फाइनल बात। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अरे मेरे प्यारों, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं, यही मुस्तफ़ा का दामन है, यही गौस पाक का दामन है, यही ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है, यही सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दामन है। अरे यही सारे वलियों का दामन है। हम धारावी वालों, अल्लाह के वास्ते एक बात तय कर लो, जान दे सकता, बोलो जान दे सकता, लेकिन मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। मैं एक ही भीख मांगने, ये पूरा बयान इसी वास्ते किया। क्यों मालूम है? एक सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत अबू अय्यूब। बोलो, जिनके मकान में अल्लाह के रसूल मदीने पाक में पहली मर्तबा आए। हजरत अबू कुस्तुनतुनिया में शहीद हुए। कहाँ शहीद हुए? कुस्तुनतुनिया में शहीद हुए। शहादत से 2 मिनट पहले पूरा बदन जब तलवारों की छाव में था, किसी ने पूछा, या अबा अय्यूब, अबू अय्यूब, कोई वसीयत तो कर दो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, मैंने नबी का जमाना देखा, मैंने तुम लोगों को देखा, एक वसीयत करता हूँ, सारे उम्मत की को कह देना नमाज की पाबंदी करे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ते जाओगे, अल्लाह की कसम कोई तुम्हारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मेरे दोस्तों, कुल्हाड़ी तो हमने अपने पाँव पे मारी है। ये कितने बैठे? ये आए बयान में आए? हाँ रेहान, ये आए बयान में आए? इनको पूछो क्यों बयान में आए? कारी अहमद अली का बयान है, बहुत जोश में बयान करता है, चल चल बयान में आ जा। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा कारी अहमद अली का बयान सुना था नहीं सुना था। अल्लाह ये जरूर पूछेगा फजर की नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। जिस मोहब्बत के साथ यहाँ आए हो, उसी मोहब्बत के साथ बोलो भाई, सब लोग तैयार हो जाओ, कौन कौन नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह? बोलो बोलो पढ़ेंगे। मैं 2 बातें कहूंगा, एक अल्लाह वाली नबी वाली बात, एक वली वाली बात, और उसी पर हमारी बात खत्म होगी इंशाअल्लाह। यहाँ थे ना वापस, वहाँ अच्छा था तो मेरे को मालूम था ये सिग्नल पे सिग्नल ही देता जा रहा है मेरे को। जब बीवी नहीं है तो इसका ये आलम है कि 10:30 बजे इसको घर भागना है, तो बीवी हुए तो कारी अहमद अली का बयान आने का ही सवाल नहीं होता है यहाँ पर। भाई मैं आखिरी बात फिर से एक मरतबा बोल दो, मुस्तफा का दामन, वलियों का दामन, और सबके दामन के नीचे नमाज। बोलो नमाज, बोलो। मैं आपको इतनी अच्छी बात बताऊंगा, कौन कौन तैयार होता पहले बोलो? 5 वक्त की नमाज, फजर, बोलो फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, माल वितर, बोलो नमाज का दामन। यानी जोर से बोलो नमाज का दामन। आज मेरे धारावी वालों, कान खोलकर सुनो, हमारे नबी जमीन पे बोलते थे, ये देखो मैं हर बयान में कहता हूं, फैसला कर लो तो बहुत अच्छा है। नबी जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला करता था। हाँ या नहीं? नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। अगर आपका यकीन मेरे साथ में हो तो बोलो, नबी जमीन पर, अल्लाह आसमान पर। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, जब जब नबी बोले हैं तब तब अल्लाह ने आसमान पर फैसला किया है। सही है? यानी आवाज नहीं आ रही, बोलो सही है। यानी आवाज नहीं आ रही, बोलो सही है। फिर बोलो, नबी जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह खुद कहता है, मेरा महबूब जबान तेरी होती है, कलाम तो अल्लाह का होता है। मेरे साथ में पढ़ोगे, ये उलमाए किराम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। अल्लाह खुद कहता, मेरा नबी जबान तेरी, कलाम अल्लाह का। बोलो जबान तेरी, कलाम अल्लाह ने फरमाया। पढ़ो, वन्नजमी इज़ा हवा, सब साथ में, वन्नजमी इज़ा हवा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वह्युन
بولتا جا, میرا محبوب فرماتا جا, زبان تیری ہوگی کلام. اب سنو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. توجہ دینا, مسجد نبوی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. سائلنٹ زون, سب خاموش ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا. صحابہ فرماتے جب نبی چہرہ اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. وہ صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا, آپ کا امتی آواز سے, آپ کا امتی کیا ملے گا, اسے کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا. نبی کہتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ, اللہ اسے جیسا یہ ہمارے نبی نے کہا. حضرت جبرائیل آئے, حضرت جبرائیل آئے, کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کہا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا, سیدھی صاف بات ہے, اس کو جنت ملے. حضرت جبرائیل نے کہا جنت ملے, لیکن میرا نبی ایسا مت بولو جنت ملے, ایسا کہو تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, اللہ وہ جنت الفردوس دے گا جس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. اس کا مطلب ہوا کہ جنت بھی بہت ہے. اے دھاراوی والو جنت, میری انگلیاں دیکھو جنت کتنی ہے, نہیں سب بولو بھائی جنت کتنی ہے, 8 بولو نا جنت کتنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت, آپ لوگ نام سنتے جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی جس کا نام جنت, بولو نا جس کا نام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی جنت النعیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی دار السلام. اللہ نے 6ویں جنت بنائی جنت المقامہ. اللہ نے 7ویں جنت بنائی جنت الماوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جنت بنائی جنت الفردوس. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا, 5 وقت کی نماز پڑھے گا. اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس دے گا اور اللہ کہے گا میرا بندہ تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, میں نے جنت الفردوس دے دی جس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں, ارادہ پکا انشاءاللہ. کب سے شروع؟ کل فجر, بولو نا کل فجر شروع انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز؟ زور سے کتنے وقت کی نماز؟ کون سی جنت ملے گی؟ جنت الفردوس. 18واں پارہ پیج نمبر 1, 18واں پارہ پیج نمبر 1. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا, نبی نے فرمایا جنت الفردوس. اللہ نے بھی کہا جنت الفردوس والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے, تو 5 وقت نماز پڑھتا رہے گا, اللہ جنت الفردوس کے فیصلے کرے گا. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات مولانا, آخری بات, نماز چھوڑے کیا ہوئے میں نہیں کہوں گا, میں نہیں. ہم اللہ کے ولی کو پوچھے نا, پیران پیر جن کے مہینے میں ہم جمع ہوئے, عالم ربانی, بولو فیض سبحانی, شیخ عبد القادر, ان کے فتوے ہیں. ارے ہے نا, ان کے فتوے ہیں, ان کے بڑے بڑے فتوے ہیں. ان کی زندگی کا آخری فتویٰ زبان گنہگار کی ہے, فتویٰ پیران پیر کا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ سنو بھائی, بولو نا غوث پاک کا دامن, اسی غوث پاک کا فتویٰ, زندگی کا آخری فتویٰ. کیا فتویٰ دیا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. کاش کہ آپ لوگوں کو ترجمہ آتا ہوتا. کیا فتویٰ دیا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر عالم رب
रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का आखिरी फतवा। लोगों सुनो, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, आप भी बोलोगे, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा मर गया, कज़ा नहीं किया, पीराने पीर फरमाते इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कलमा तो दूर की बात कलमे को सोच भी नहीं सकता। यानी इसका सीधा साधा मतलब है कि मौत के वक्त उसको कलमा नसीब। इसलिए मेरे प्यारों, भिखारी की तरह भीख मांगता हूं कि हम सब मिलकर आज पक्का वादा करें, पक्का इरादा करें और एक साथ में बोले भाई, एक साथ में पक्के इरादे के साथ बोले, नमाज का दामन, बोलो ना नमाज का दामन। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, बोलो आमीन। कौन कौन नमाज पढ़ने को तैयार है, हाथ ऊपर करो और बोलो इंशाअल्लाह। मैंने पूरा मजमा, कोई खामोश नहीं रहेगा, अल्लाह का वास्ता बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कल की फजर इंशाअल्लाह, बोलो मौत की शाम इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा, जोर से हमारी नमाज कज़ा, बुलंद आवाज से हमारी नमाज कज़ा, बोलो नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखे और मेरी एक दो बातें सुने, बात खत्म कर रहा हूँ। हमने 3 बातें कही। नंबर 1 ला इलाहा, शुरू इसी से किया, ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, वलियों का दामन। और नंबर 3 5 वक्त की। कौन कौन तैयार? बिल्कुल सही बता दो भाई, तैयार हो इंशाअल्लाह। अच्छा मेरे प्यारों, मैं एक और जन्नत आपको बताना चाह रहा हूँ। बस मेरे को 10-25 तक का टाइम है, आप लोग जरा तवज्जो से सुनेंगे ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे प्यारों, ये जिस मस्जिद के अंडर में ये प्रोग्राम हुआ, क्या नाम हुआ मस्जिद का? मस्जिद ईमानिया के अंडर में ये प्रोग्राम हुआ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी से कोई ज़्यादा मिला नहीं। मैं अपनी ट्रेन से आया, उतरा, इतना थकाया था, आराम किया, सीधे कुर्सी पर आ गया, बैठ गया। मौलाना सिराज और सदर साहब के हुक्म से यहाँ पर आया। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मौलाना सिराज साहब कितने अच्छे अंदाज में नाते पाक, हमदे पाक, मैं यहाँ था, सुन रहा था, मेरे कान इधर थे, मैंने कुरान सुना, नात सुनी, हमदे पाक सुना। अल्लाह ये तमाम बच्चों को हाफिज़ कामिल बनाए, अल्लाह आलिम बाअमल बनाए, अल्लाह दीन का दाई बनाए, अल्लाह तमाम बच्चों को माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए। और मैं आपसे एक मरतबा फिर कहूँगा मेरे प्यारों, नमाज पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह, तो मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे को यहाँ पे लाने वाले जो मेन है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त जिलानी भाई बम्बई की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तारीख इनको देता हूँ, यही पूरे मामले को गौर करते हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहला सवाब उनको मिलेगा, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इसी तरह उनके साथ जितने रुफ़क़ा आए, पनवेल से उलमाए किराम आए, यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे, तमाम उलमा से माफ़ी चाहते हुए मैं कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ करे, मेरे लिए भी दुआ करे, हम सब के लिए दुआ करे कि जो बातें कही गई है अल्लाह मेरे को और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह आज की मजलिस को, आमीन बोलो, मग़फ़िरत का जरिया बनाए, रहमत का जरिया बनाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, बोलो अल्लाह हमसे। यही हम दुआ में कहेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन ये मस्जिद ईमानिया के अंडर में जो प्रोग्राम रखा है मेरे दोस्तों, मस्जिद ईमानिया अल्लाह का घर है। बोलो किसका घर है? अल्लाह का घर है। और आज वो अल्लाह के घर को जरूरत है, आज अल्लाह के घर को जरूरत है मेरे दोस्तों, हमारे माल की जरूरत है। और आपको शायद धारावी वालों मालूम नहीं होगा, ये अल्लाह के घर को जब पैसे की जरूरत हो, हम अगर दे, अल्लाह हमको क्या देगा? सुनते जाना, अल्लाह हमको क्या देगा? मैं डायरेक्ट कुरान से आपको बताऊंगा अल्लाह हमको क्या देगा। ये मस्जिद ईमानिया, आज इसको कलेक्शन की जरूरत है, आज इसको चंदे की जरूरत है, आज इसको पैसे की जरूरत है। मस्जिद का काम करना है, मस्जिद का काम करना है, अल्लाह के घर का काम करना है। इस पे क्या मिलेगा, मेरे को पूरा यकीन है। मैं गुजरात में जाता हूँ ना, और जब कोई मस्जिद का प्रोग्राम होता है ना, मैं इतना खुश होता हूँ। और वहां बाहर रुमाल लेकर खड़े होते हैं ना मौलवी सिराज, हमारे गुजरात में मेरे दोस्तों कितनी जगह ऐसा हुआ, एक बजट लेकर हम खड़े हो गए कि भाई 2 लाख का बजट है, 5 लाख का बजट है, बयान होता है। 1 घंटे के बाद मुझे फोन आता, कारी साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मस्जिद का बजट पूरा हो गया है। और मैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जो बात मैं बताता हूँ ना उस बात में कमाल है। मेरे में कोई कमाल? अरे बोलो मेरे में। हजरत हसन हमारे नबी के शान में शेर पढ़ते थे, बोलो हजरत हसन नबी के शान में। तो किसी ने कहा हसन वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ा? कहा मेरा कोई कमाल नहीं है, मोहम्मद का नाम ले लिया तो शेर भी ऊंचा हो गया। भाई सही है ना? इसलिए हजरत हसन कहते मां इन मदाह
محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مقالتی مدحت بمحمدی. اگر حسان کہتے میں نے محمد کی کبھی تعریف نہیں کی ہے، محمد کا نام آ گیا تو میرے شہر کی تعریف ہونا شروع ہو گئی. یہی میں بھی کہوں گا، جہاں بھی ہم جاتے ہیں الحمدللہ مسجد کا بجٹ پورا ہوتا ہے. آج مسجد ایمانیہ کے تحت ہم آئے ہیں، مجھے معلوم ہے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، انٹیلیجنٹ اور ماشاءاللہ پڑھے لکھا طبقہ اور یہاں کے چاہنے والے اور مسجد سے محبت کرنے والے، اللہ کے گھر کے دیوانے. ارے میرے پیارو، آج مسجد کا جو بھی بجٹ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے اللہ نے فرمایا ایک دے دے. اللہ نے فرمایا ایک دے دے. اللہ کہتا میرا وعدہ مرنے سے پہلے 10 واپس کر دوں گا. سبحان، ارے بولو بات ختم نہیں ہوئی، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ کہتا میرا گلے ایک دے دے مرنے سے پہلے. بولو مرنے سے پہلے. آپ کو معلوم ہے ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب، اللہ کو سب معلوم ہے پھر بھی اللہ نے پوچھا میرا محبوب رو رہے. سنو سنو یہاں توجہ دینا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ میرا امتی کتنا دے گا؟ میرا امتی کتنا دے گا؟ ایک. اللہ تو کتنا دے گا؟ ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ تو کم ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب راضی ہو جا، آج سے تیرا امتی ایک دے گا، میں 70 واپس کروں گا. آج سے تیرا امتی ایک دے گا، میں کتنا واپس کروں گا؟ آپ کو معلوم ایک دن پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ بھی کم ہے، اللہ میرا امتی محنت سے ایک دے گا. اللہ تو اونلی 70، اللہ تو صرف 70 دے گا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب راضی ہو جا، تیرا امتی ایک دے گا. اللہ کہا میں 700 واپس کروں گا. زور سے بولو نا. اللہ کتنا واپس کرے گا؟ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. کتنا دے گا اللہ؟ اور ٹھیک میرے دوستو ایک روایت کے مطابق 11 دن باقی تھے ہمارے نبی کے وصال مبارک کو. یہ ربیع الاول مہینہ 11 دن باقی تھے. ہمارے آقا ساز نے فرمایا اللہ میرا امتی ایک دے گا، اللہ تو 700 دے گا. اللہ کیا کم نہیں؟ اللہ 700 کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب راضی ہو جا، تیرا امتی گن گن کے دے گا، تیرا امتی گن گن کے دے گا. میں اتنا دوں گا کہ وہ گن بھی نہیں پائے گا. اللہ نے فیصلہ کر دیا واللہ یضاعف لمن یشاء. تیرا امتی گن گن کے دے گا، میں اتنا دوں گا تیرا امتی گن بھی نہیں پائے گا.